Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 11th SPCC chapter number 3 from part 2, Incorporation of Company. Today we are here to see the part 1 of this chapter. As you all know, we are going to start up a new chapter. So let us have a short summarization regarding the portion that we are going to see in this chapter. So in this chapter, incorporation of a company, we are going to see about the characteristic of a company. So characteristic regarding the portion, how a company is been formed up. After that, the procedure of starting up a company. Legally, what are the provision or the procedure that must be done for starting up a company. In that preliminary stage and the portion of the above main stage, that two portion we are going to cover up in this chapter in a very detailed manner. And we are going to see the incorporation mean to start up, to establish a business. So how we can get the incorporation certificate from the registrar and what are the procedure for it. In that manner we are going to see this chapter in a very detailed portion. So we are going to see the portion in this manner. So let us have the brief explanation of the chapter from the PDF in the further video. Students, let us move on with the chapter number 3, incorporation of a company. So what we are going to learn in this chapter we are going to see the meaning and the definition of a company, characteristic of the company, procedure of the company, preliminary stage and incorporation stage. As we discussed in the summarization, the same portion we are going to see in this chapter. So let us move on with the introduction without wasting the time. I am going to read it out, listen it out carefully. Introduction. In a commercial setup for large-scale trade, the formation of a company is the most suitable arrangement. Company possesses artificial personality. Its legal personality does not automatically come into existence. The procedure of incorporation of a company is complicated and lengthy. Sole proprietorship can be established easily. The nature of the partnership firm is broader than the sole proprietorship firm. The registration of a partnership firm is optional. As compared to that, the incorporation procedure of a company is lengthy, complicated and expensive. A company comes into existence after having complied with the provisions of the Company Act, registrations of the necessary documents and completions of the legal procedure. The person who established such artificial legal personality are known as promoters. So कमर्शियल सेटअप की अगर हम बात करते हैं, कमर्शियल सेटअप इन द सेंस अगर हमें एक बड़े पाए में लार्ज स्केल में एक बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमें कंपनी शुरू करना पड़ेगा. सो कंपनी एक मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट के साथ स्टार्ट होता है. कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी भी माना जाता है, एक अलग एक आर्टिफिशियल इंसान जो कि जीता जागता है इंसान नहीं बल्कि इंसान की तरह काम करने वाला एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. इसीलिए इसका जो लीगल पर्सनालिटी है अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता. हम अपने मर्जी से कंपनी शुरू करके बोले ये भी एक कंपनी और इसको सब भरोसा करो तो नहीं हो सकता, तो उसको लीगल प्रोसीजर के साथ वो स्टार्ट करना पड़ता है. इसीलिए जो प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी शुरू करने के पहले जो प्रोसीजर किया जाता है कंपनी का, कंपनी शुरू करने के लिए लीगली उसको रजिस्टर करवाने के लिए वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जो प्रोसीजर देखा जाता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी देखा जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करते तो वो इजीली एस्टेब्लिश हो सकता है. एक ही ओनर होता है, एक ही पोर्शन होता है, इसलिए वो इजीली जो है स्टार्टअप किया जा सकता है. बट नेचर ऑफ पार्टनरशिप भी अगर देखो तो सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. वहाँ पे 2-3 लोग इंक्लूडेड होते हैं, फिर भी सोल प्रोप्राइटर जितना उसका ब्रॉडेड पोर्शन होने के बावजूद दो पार्टनरशिप की फर्म की रजिस्ट्रेशन है ये ऑप्शनल है. आप चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो वरना नहीं भी करवा सकते हो. बट ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये दोनों चीज़ों को अगर आप कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है ये बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड और ऊपर से खर्चेदायक यानी एक्सपेंसिव माना जाता है. क्योंकि अगर एक कंपनी स्टार्टअप करना है तो उसको एग्जिस्टेंस के लाने के पहले हमें प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी वो लागू करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ. उसके साथ लीगल जो प्रोसीजर्स होते वो सारी प्रोसीजर्स को भी हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है. तो ये जो पर्सन्स लीगल आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को प्रमोट करते हैं यानी इसको शुरू करते हैं उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है. इन शॉर्ट, कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपनी हैज़ अ लेंदी,
कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अप, और वो लीगली माना जाता है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल कंसिडर किया जाता है, इसी रीजन की वजह से ये पोर्शन थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. Meaning and definition of company. First of all, meaning. I'm going to read it out, listen it. The word company has no strictly technical or legal meaning. Under the British common law, company is defined as a legal person or legal entity. It is separate from, capable of surviving behind the lives of its member. The members of any company may change, retire or die, but it does not affect the existence of a company. So the word company, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का मतलब वो इकोनॉमर्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ऐसा उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देखा जाता है. तो यहाँ पे कंपनी का ऐसा कोई टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है, कानूनी तौर पे भी इसका इतना परफेक्ट मीनिंग नहीं है और ना ही उसका टेक्निकल मीनिंग है. बट ब्रिटिश कॉमन लॉ, ब्रिटिश का जो कॉमन लॉ है उसके हिसाब से अगर आप कंपनी को डिफाइन करोगे तो उसके हिसाब से कंपनी का मतलब एक लीगल पर्सन, लीगल पर्सन इन द सेंस जो एक कानूनी इंसान माना जाता है, यानी कानून के तौर पे वो एक इंसान, आर्टिफिशियल इंसान माना जाता है. एक एंटिटी, उसकी एक पहचान देखी जाती है, वो भी लीगली देखी जाती है. सो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है. जैसे पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर वो जो इंसान उसको चला रहा है उसने शुरू किया, अगर वो मर गया, वो छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है तो वो बंद हो जाता है. बट कंपनी में ऐसा नहीं है. कंपनी में जो जीता जागता इंसान काम कर रहा है, अगर वो ना भी रहे, चला जाए, दूसरा कोई आ जाए, तो भी कंपनी में उसका कोई फर्क देखा नहीं जाता. मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं या मर भी सकते हैं. उसका कोई इफेक्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी में देखा नहीं जाता. तो यहाँ पे इसका मीनिंग खत्म होता है. नेक्स्ट पोर्शन है डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013. कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under the Company Act 2013 or under any provision company law. Company Act 2013 is introduced sage wise. So यहाँ पे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी एक्ट के अंदर जो जो कंपनियां बिजनेस शुरू किया जाता है वो प्रीवियस लॉ यानी 2013 नया कंपनी एक्ट है. पुराना कंपनी एक्ट के नए कंपनी एक्ट, कोई भी कंपनी एक्ट में अगर कोई कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी शुरू किया जाता है तो उसे कंपनी बोला जाता है. कंपनी एक्ट 2013 स्टेज वाइज इंट्रोड्यूस, स्टेज वाइज यानी धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट देखा गया. यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन खत्म होता है. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक. सो लेट अस हैव अ नोटिस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक. एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. अगर आपका पोर्शन इनकॉर्पोरेटेड है यानी अगर आपने कोई भी बिजनेस कंपनी शुरू किया है तो हर एक कंपनी जो जो शुरू हुआ है इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट के हिसाब से उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक तो देखा ही जाएगा. नंबर 1, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. Independent corporate existence is one of the most significant features of company. Company is regarded as a legal person having entire distinct personality independent from its member. So independent corporate existence होना यानी कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एक्सिस्टेंस का मतलब एक जो कंपनी जब भी शुरू होता है तो उसे एक लीगल पर्सन माना जाता है, उसका एक अपना एक अलग पहचान होता है. तो जैसे एक इंसान, जैसे आप हो तो आपकी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होगा, मैं हूं तो मेरा एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो हर एक कंपनी अपने तरीके से इंडिपेंडेंट होता है और उसका एक अलग जो है एग्जिस्टेंस माना जाता है. श्रीराम कंपनी तो वो श्री राम का कंपनी है, यानी ऐसा नहीं कि श्री राम यानी भगवान राम, तो श्री राम के नाम से वो इनकॉर्पोरेशन पे आया गया तो उसका एक अलग पहचान होगा. श्री साई यानी वो एक अलग पहचान होगा. मारुति लिमिटेड यानी वो एक अलग कंपनी माना जाएगा. तो इस तरीके के हर एक कंपनी का अपना एक इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए एक इंडिपेंडेंट पोर्शन देखा जाता है. नेक्स्ट इट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर. द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स असेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लिमिटेड मेंबर even as a whole are neither the owner of the company's undertaking nor liable for its debts. The member's liability is limited only to the nominal value of the shares taken by them. No matter is bound to contribute more than the nominal value of the share held by him. However, company with unlimited liabilities can be formed.
लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर। अब ये जो कंपनी है उसका एक अपना ही अलग लीगल पर्सन के नाम पे देखा जाता है, इसलिए यहाँ जो ओनर्स होते हैं इनका असेट्स क्या होता है, इनका असेट्स और लाइबिलिटीज, इनके जो ओनर होते हैं वो असेट्स और लाइबिलिटी के साथ बंधे हुए होते हैं। तो मेंबर्स यहाँ पे जितने भी हो, जितने पूरे हो या आइदर एक ओनर हो, कंपनी की अंडरटेकिंग कोई चला रहा है, तो वो सारे कोई जो है नॉट लायबल फॉर हिज डेब्ट्स। तो कोई भी नाइदर ओनर नाइदर कंपनी, जो भी मेंबर अपना जो पोर्शन लेगा तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि कंपनी, ना कि ओनर उसके लायबल माना जाता है। उसका जो भी लायबिलिटी होगा लिमिटेड माना जाता है। तो जो मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि आपको पता है कंपनी कैसे शुरू किया जाता है, तो शेयर्स इशू करके शुरू किया जाता है। तो आप जो शेयर इशू करते हो, अगर आपने 1000 रुपए का शेयर लिया तो आपकी लायबिलिटी उस 1000 तक की है, कंपनी के ऊपर आप उसके ऊपर से ज्यादा कोई भी उधारी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से नॉमिनल वैल्यू जो होता है शेयर का, उसके हिसाब से ही वो लायबिलिटी मेंबर का देखा जाता है। अगर उसने कोई ज्यादा उधार ले लिया तो वो कंपनी, ना कि कंपनी का ओनर, उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कंपनी के मेंबर जो है कंट्रीब्यूट मोर देन नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा कंट्रीब्यूशन शेयर अगर उनके पास है तो उसके लिए बाउंडेड नहीं है। हाउएवर कंपनी अगर अनलिमिटेड हो तो वो अलग चीज होता है, और अनलिमिटेड कंपनी का भी ऐसे ही कहीं ना कहीं पोर्शन देखा जाता है, वो भी फॉर्म अप किया जाता है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ और इलनेस और एनी ऑफ इट्स मेंबर। सो कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे हमने बात किया, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, यानी एक वो भी इंसान ही है, इंसान है बट आर्टिफिशियल, यानी बनाया हुआ इंसान। हम इंसान को कभी बना सकते हैं? नो। तो ये बनावट का इंसान माना जाता है। इसका एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है, ना ही ये मरता है, ना ही ये बीमार होता है जैसे दूसरे मेंबर्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा लॉस हो तो ये बंद हो सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी इज कैपेबल ऑफ owning, enjoying and disposing of property in its name. No shareholder of company can claim its rights over the property of a company. So ये एक सेपरेट लीगल पर्सन की तरह देखा जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो पोर्शन होता है ये पूरी तरीके से अलग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल अलग इंसान की तरह देखा जाता है। तो कंपनी के नाम पे ही एसेट लेना, कंपनी के नाम पे ही प्रॉपर्टी लेना, कंपनी के नाम पे ही लायबिलिटीज करना और उसी के नाम पे उसको यूज करवाना कंपनी के लिए, इस तरीके से देखा जाता है। जैसे हम जीते जाते इंसान है, हम हमारे लिए घर रहते हैं तो हम ही यूज करते हैं, हम ही रहते, फिर हम ही बेचते हैं। उसी तरीके से कंपनी का जो होता है, कंपनी के एसेट्स कंपनी के लिए लिए जाते हैं, कंपनी यूज करता है और कंपनी ही उसके ऊपर डिस्पोजल भी किया जाता है। कोई भी शेयर होल्डर अपना हक उस कंपनी के एसेट्स पे लगा नहीं सकता। जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी है वो कंपनी का रहेगा। शेयर होल्डर्स का जो शेयर का वैल्यू है उतना तक का ही हक एक शेयर होल्डर्स का उसके पोर्शन के अंदर देखा जाता है। सो नेक्स्ट पोर्शन जो है transferability of share. Subject to the provision laid down in the article of the association of a company, the share of a company can be transferred. So यहाँ पे अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने ये प्रोविजन रखा है तो कंपनी के शेयर्स कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। So capacity of the company to sue and be sued. A company being legal person in eyes of the law can initiate legal proceeding against anyone, as well as it can be sued by any person in its own name. In the same manner, suit can be filed against a company by any person for breach of contract. So company एक अलग इंसान, आर्टिफिशियल इंसान माना जाता है, लीगल इंसान माना जाता है। कानून की नज़र पे वो एक इंसान की तरह होता है बट बनावटी इंसान माना जाता है। इसीलिए कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकता है अगर किसी ने कंपनी के साथ धोखा करने की कोशिश किया हो तो। इन द सेम सेंस अगर कंपनी कर सकता है तो कंपनी के ऊपर भी कोई कर सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंपनी ने वायदा किया उस तरीके से पोषण नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर वो सामने वाला इंसान भी धोखाधड़ी का, कॉन्ट्रैक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का जो है केस कर सकता है। कंपनी भी केस कर सकता है और कंपनी के सामने भी कोई केस कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। द कॉर्पोरेट सेक्टर इज इनकैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द ग्रोइंग कैडरेट ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल मैनेजर। सो कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाता है वैसे वैसे प्रोफेशनल मैनेज की जरूरत पड़ती है और कंपनी सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्शन माना जाता है, इसलिए वहां पे भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत रहता है। फोर्थ लास्ट वन,
Eighth point, finances. Normally, an incorporated company comes into existence on the capital raised by public subscription, either from shares or debenture. Normally, अगर हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो नया नया कंपनी शुरू हुआ है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, अगर ये देखें तो कैपिटल रेज करके, यानी कि शेयर्स को इशू करके, शेयर्स के ऊपर पब्लिक सब्सक्रिप्शंस करके, और उसके ऊपर शेयर्स या डिबेंचर्स के जो पैसे देखे जाते हैं उसके ऊपर कंपनी का पैसा खड़ा होता है। इसलिए इस फाइनेंस से ही कंपनी कहीं ना कहीं शुरू किया जाता है, ये माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have saw about the incorporation of a company, in which we have covered about the introduction, meaning and definition, and the characteristic of the company in a very detailed manner. So now let us have a short summarization regarding the topic that we have seen today. So today we have seen about the introduction. Introduction की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिजनेस के फॉर्मेशन में सबसे इफेक्टिव और लार्ज स्केल में काम करने वाला पोर्शन जो है वो कंपनी का माना जाता है, कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म. सोल प्रोप्राइटरशिप को कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में लाना बहुत ही इजी होता है, और उसकी अगर जो ओनर होता है उसकी डेथ होता है तो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर उसको संभालने रेडी हो तो वो चल सकता है, वरना वो बंद होकर दूसरी बार कोई दूसरा स्टार्ट कर सकता है. सेम इन द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करते तो ये भी सेम होता है, 2 या 3 लोग इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई नया आता है तो इस टाइम पे उसको पूरा तोड़ के नया बनवाना पड़ता है. अब पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप कहीं ना कहीं इजीली एस्टेब्लिश भी हो जाते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ऐसा माना नहीं जाता है. जबकि कंपनी ऐसा नहीं है. कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पोर्शन होता है वो बहुत ही लेंदी, कॉम्प्लिकेटेड और रदर देन दैट बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर माना जाता है. तो यहाँ पे कंपनी जो है अपना एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, उसका एक अपना एक लीगल एंटिटी होता है. कानून की नजर में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है. कोई अगर पार्टनर मर जाता है, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, यानी जो भी लीगली कंपनी को बाहर लाते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन करते हैं, उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है. तो जो भी प्रमोटर होते वो प्रमोटर्स कहीं ना कहीं अगर उनकी डेथ हो जाती है या कोई उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता तो कंपनी रुकता नहीं है, उसकी एक्सटेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी एक्सटेंस में कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है अलग तरीके से देखा जाता है. इसीलिए कंपनी बहुत ही अलग और वी कैन से दैट न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस माना जाता है जो लार्ज स्केल पे काम करता है. मीनिंग ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लीगल एंटिटी होता है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. अगर किसी का डेथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इस पर कोई असर नहीं होता और ये लॉन्ग टर्म तक देखा जाता है और लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है. सो कंपनी की मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है, बट ब्रिटिश लॉ के हिसाब से जो भी बिजनेस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है कंपनी माना जाता है. इवन डेफिनेशन में भी यही बोला गया है. पुराने कंपनी लॉ या नया जो कंपनी लॉ स्टेज वाइज जो इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, इसके अंदर से कोई रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो उसे कंपनी माना जाता है. यहां खत्म होता है मीनिंग एंड द डेफिनेशन. फिर हमने डिटेल में देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी. सो हर एक कंपनी एक्ट के अंदर जितने कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड किए गए उनके ये 8 कैरेक्टरिस्टिक तो कहीं ना कहीं देखा जाता है. सबसे पहले इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. तो ये जो है लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट एंटिटी होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. जैसे हमारा एक अलग छवि है उसी तरीके से इसका भी एक अलग छवि होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं होता है. ये फर्स्ट पोर्शन में देखा गया. लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द मेंबर्स. कंपनी एक लीगल अलग पर्सन माना जाता है. यहाँ पे जो पोर्शन होता है उस पोर्शन के जो इंसान होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ जो मेंबर इंडिकेटेड करते हैं यानी मेंबर्स जो इसके अंदर जुड़ते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है. जितना नॉमिनल वैल्यू का शेयर उनके पास होता है उतना ही वैल्यू का वो कोई भी चीज खरीद या उधार ले सकते हैं. डेप्ट अगर पर्सनल शेयर होल्डर की डेप्ट है तो वो लिमिटेड माना जाएगा कंपनी के हिसाब से. अगर उसने कुछ ज्यादा लिया या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी और ओनर उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हाँ, अनलिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो वो भी फॉर्म अप किया जाता है बट उसके कुछ कानून अलग देखे जाते. थर्ड पोर्शन में हमने देखा परपेचुअल एग्जिस्टेंस. जैसे इसका एक अलग अपना पोर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस माना जाता है. लीगली ये इसका एक अपना अलग आइडेंटिटी होता है, इसलिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस देखा जाता है. सेपरेट प्रॉपर्टी यानी जैसे हम इंसान हमारे लिए प्रॉपर्टी खरीदते और हमारे नाम पे रखते, हम यूज करते और फेंक देते और या उसको बेच देते, उसी तरीके से कंपनी के नाम से ही अपना एक अलग सा पोर्शन ऑफ द
प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, यूज किया जा सकता है और उसको बेचा भी जा सकता है। कोई भी शेयर होल्डर उस पर अपना हक जता नहीं सकता। ये टॉपिक के ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब कंपनी के नाम पे जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी कभी भी कोई भी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है या इवन कंपनी अगेन उसको खरीद भी सकता है। ये पोर्शन बहुत ही डिटेल में देखा गया। नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ सुइंग एंड टू बी शूड बाय द कंपनी। सो यहाँ पे कंपनी को ये एक लीगल एंटिटी की तरह कोर्ट के थ्रू देखा जाता है। लीगली कोर्ट के नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसीलिए अगर कंपनी को किसी ने धोखा दिया है, उसका पैसा किसी ने ले लिया, नहीं दे रहा है, ब्रिच कर रहा है, तो उस टाइम पे कंपनी उसके ऊपर लीगल केस कर सकता है। इन द सेम मैनर कंपनी के ऊपर भी कोई भी अपना लीगल केस कभी भी लगा सकता है। ये पोर्शन था पॉइंट नंबर 6। 7 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फाइनेंस है, फाइनेंस भी अपने तरीके से लाता है। सो फाइनेंस अपने तरीके से लाता है इन द सेंस वी कैन से दैट कंपनी के अंदर जो भी पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी क्या करता है, तो कंपनी उसके लिए शेयर मार्केट के अंदर अपना शेयर्स को, डिबेंचर को, और वी कैन से दैट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होल्ड शेयर्स, डिबेंचर, ये सारी पोर्शन को इशू करता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, कैपिटल को रेस करता है, फिर बिजनेस चलाता है। सो इन दिस मैनर हमने 7 पॉइंट तक देखा। सो 8th पॉइंट है कहीं ना कहीं ये पोर्शन जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं यहाँ जरूरत रहती है। कंपनी एक लार्ज स्केल में चलता है और एक्सपर्ट्स की इसमें जरूरत होती है, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की यहाँ बहुत ही सख्त नीड होता है और यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखा जाता है। सो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक का 8 पॉइंट के बारे में हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.